In an age of breaking news, sensationalism, and shrinking attention spans, what continues to really hold good is journalism quality, clarity, and credibility. And that's exactly going to be the theme of this event, which is language, finesse, and the soul of journalism. And this conversation brings together editors and storytellers who have consistently raised the bar and keeping that bar high. So to have a conversation around this topic, first I want to invite Jayraj Singh. Jayraj Singh is from the Times of India, a journalist who believes good journalism is as much about how you say it as what you say. With a career in both digital and print space, he's known for championing thoughtful storytelling, editorial depth, and linguistic precision. Jayraj, thank you for coming. Yeah. Let's give it up, right? Next, I want to invite Sumit Avasthi, a senior journalist at NDTV, a household name in Hindi television journalism with decades of experience anchoring national debates and delivering clear, impactful news. Sumit brings with him the authority of someone who understands the weight of every word spoken on air. Sumit, thank you for joining in. Thank you. Let's give it up for Sumit. Naresh Fernandez, editor of Scroll, is a rare combination of literary flair and editorial integrity. Whether he is reporting on the arts, politics, or urban India, Naresh's commitment to detail, context, and nuance makes his journalism stand out, not just on information, but as a craft. Hi Naresh, great to see you again. Yeah. Next is Atul Chaurasia, executive editor of News Laundry, is known for his fearless and analytical reporting. With a sharp eye on language and accountability, he's helped redefine digital journalism with content that's sharp, accessible, and deeply rooted in journalistic values. Thank you so much for joining in. And steering this discussion will be Mr. Tribhuwan of Dainik Navjyoti, a journalist. You've seen him before on stage. A journalist, decades-long career is a testament to the power of language done right. Mr. Tribhuwan, thank you for coming. Thank you. Over to you, Mr. Tribhuwan. पत्रकारिता की जितनी भी विधाएं हैं उनमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और भाषा ही वह माध्यम है जो आप तक खबर को या खबर के तथ्यों को लेकर आता है। उस भाषा के शब्द बहुत महत्व रखते हैं। पिछले दिनों में जो भाषा के साथ हुआ है और जिस तरह की भाषा में बदलाव आए हैं उसे हम सब महसूस कर रहे हैं। 80 के दशक के बाद भाषा किस तरह से परिवर्तित हुई और 90 तक आते आते फिर कितने बदलाव आए और उसके बाद वो तेजी से कैसे लुढ़कने लगी, इसके कुछ उदाहरण मैं जब ये सब्जेक्ट तय हुआ तो मैं देख रहा था, याद कर रहा था कि जैसे गद्दार, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, पप्पू, गॉडमैन, बिकाऊ, अर्बन नक्सल, किस तरह से घृणात्मक और किस तरह से जो शब्द थे वो बदलते गए। जो लोकतांत्रिक चेतना के आंदोलन थे, लोगों की आवाज उठाने की जो तौर तरीके थे, उन्हें किस तरह से ये कहा गया कि ये एक तरह से बिल्कुल देशद्रोही रूप ले रहे हैं। जो सरकार विरोधी था या सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ जो बात थी उसे देशद्रोह की संज्ञा देना, जो शासकों के खिलाफ कोई बात कह रहे थे उन्हें पाकिस्तान लविंग लिबरल्स क्राई अगेंस्ट पीएम हिट्स बैक, इस तरह के हेडिंग्स हमने देखे। अर्बन नक्सल्स हाईजैक द प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, ये मैं हेडिंग्स पढ़ रहा हूं कुछ जो पिछले दिनों में 2020 के बाद के कुछ हेडिंग्स हैं। लुटियंस गैंग एक्सपोज्ड अगेन इन टूल किट स्कैंडल, नेशन वांट्स टू नो व्हाई ट्रेटर्स आर फ्री, मुल्ला मौलवियों को दिखा दी सरकार ने औकात, लव जिहाद का बड़ा खुलासा, हुस्न का जाल और काफिर से निकाह, पप्पू की फिर खुली पोल, कैसे हार गया भारत को बदनाम करने वाला गैंग फिर एक्टिव, गुंडों की मां बनने वाली सरकार। पता नहीं किस किस तरह के शब्द और जो पत्रकारिता में शायद कभी कल्पना में भी नहीं थे और कभी शायद कोई पाठक भी जब पत्र लिखता था तो वो इस तरह के कमेंट नहीं करता था।
तो ये इस तरह का एक दौर हमारे सामने रहा है। आज जितने भी लोग हमारे सामने अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, तो मैं इस बहस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सुमित अवस्थी जी से बोलूंगा कि वो अपने इस भाषा का जो बदलाव हुआ है, मीडिया की जो भाषा है, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश उसके माध्यम से जा रहा है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जयपुर, थैंक यू जयपुर टॉक्स इस अवसर के लिए। भाषा मेरे ख्याल से समाज का प्रतिबिंब है, जो समाज में हो रहा है। हम पत्रकार भी उसका हिस्सा हैं। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, इस डिस्क्लेमर के साथ शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई अतुल यहाँ बैठे हुए हैं और वो भी आज ही के दौर के पत्रकार हैं, आज ही के दौर के साहित्यकार हैं। मैं तो इनको पत्रकार कम और साहित्यकार ज़्यादा मानता हूँ, हिंदी की भाषा में कम से कम। जिस तरह, और मैं खुद इनके वीडियोस, इनके जितने भी एक्सप्लेनर्स है ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि भाषा सीखने के लिए आपके लिए उम्र नहीं चाहिए, कभी भी आप सीख सकते हैं, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, जहाँ से सीखे सीख लेना चाहिए। तो ये बात जो कही गई कि आजकल जिस तरह के हेडलाइंस कह लीजिए, थंबनेल्स कह लीजिए, या हम जिसको टॉप स्टोरी बोलते हैं, टॉप बैंड्स बोलते हैं, जिसको आप हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं इस फोरम में, ये है, ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कर रहे हैं, मैं मानता हूं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी चीजें जितनी जल्दी खत्म हो जाए, जितना इनके खिलाफ दिखा जाए, बोला जाए, हाईलाइट किया जाए, उतना जरूरी है। तो मेरी तो गुजारिश रहती है हर मंच पे कि हम 5 साल में नहीं आते हैं सर, हम तो हर रोज आते हैं आपके पास, और हम हर रोज अपने काम का लेखा जोखा लेके आपके सामने खड़े हो जाते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, और आप हर रोज हमारे काम के लेखा जोखा का रिजल्ट हमको दे देते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपको बोलने का तरीका कैसा है। तो हमको किसी 5 साल के लिए आखिरी 6 महीने में, आखिरी 6 हफ्ते में कोई SIR कराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे हैं, हम यहीं मौजूद रहते हैं। तो हमको अगर ये फीडबैक प्रॉपर मिले, हम मतलब जब मैं हम की बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी मीडिया फेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं अखबार भी लेके चल रहा हूँ, डिजिटल भी लेके चल रहा हूँ, टीवी भी लेके चल रहा हूँ, रेडियो भी लेके चल रहा हूँ, जितने भी मीडियम हैं संचार के माध्यम, उन सब के ब्याह पे कहने की जहमत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और हिमाकत कर रहा हूँ। हमको तुरंत अगर ये फीडबैक मिले कि आपने जो किया है वो गलत किया है, आपकी वजह से समाज में गलतियां फैल रही हैं, खामियां फैल रही हैं, हम गलत चीजें कर रहे हैं, तो शायद हमको तुरंत चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाएंगे। हमको रिजल्ट मिलने में अरसा लग जाता है। अगर हम टीवी की भाषा में करें तो हो सकता है डिजिटल में तुरंत मिल जाता हो, टीवी की भाषा में करें तो हमको 1 हफ्ता, पहले तो हमको 1 महीने तक का वेट करना पड़ता था, अब 1 हफ्ते का वेट करना पड़ता है कि कोई शो ने कैसा किया या नहीं किया। पर वो भी बहुत ब्रॉड नंबर्स आते हैं, पर्टिकुलरली जिस तरह के आपने बहुत ही स्पेसिफिक चीजें पूछी हैं कि भाई विराट कोहली आज तो जो 100 मारता है, आज वो स्लो क्यों खेल रहा है, तो वो उस वक्त की जरूरत रही होगी, इसलिए विराट कोहली उस वक्त 100 धीमे खेल रहा था। तो अगर हमको ये फीडबैक मिले, अगर हमको ये पता लगे कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो अनुचित है, और हमको भी समझ में आता है, ऐसा नहीं हमको नहीं आता, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि किसी जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा चीजों को रिजेक्शन मिलना चाहिए जो अच्छी नहीं है। रिजेक्शन मिलेगा तो जाहिर तौर पर वो आगे नहीं बढ़ेंगी, वो रिजेक्शन नहीं मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलता जाता है, उसको अप्रिशिएशन मिलता जाता है, उसको रिवॉर्ड मिलते जाते हैं, उसको अवार्ड मिलते जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड, मैं नाम लेके नहीं छोटा करना चाहता हूँ किसी को। तो आदमी क्या कर सकता है, तो ये मौके की नजाकत कह लीजिए, ये नाकामी कह लीजिए, ये जल्दबाजी कह लीजिए, आप जिस चाहिए उस प्लेटफॉर्म में हमको बांध सकते हैं। हम सब इस हमाम में हैं और हम सब इस हमाम में नंगे हो चुके हैं, ब्लंटली। अवस्थी जी ने जो स्थिति थी, एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में बड़े लंबे समय से वे काम करते रहे हैं और आपने उनको धीर गंभीर और मंथर गति के साथ, एक अच्छी लय के साथ हमेशा खबरें पढ़ते हुए, अपने विचार व्यक्त करते हुए और जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको सामने रखते हुए देखा है। तो इस विचार के बिल्कुल एकदम परिस्थिति दूसरी और भी है, जहां मतलब खबरें
खबरों की कम और खबरें करने वालों की ज्यादा धुलाई होती है, और उसे अभी बहुत अच्छे से सभी लोग देखते हैं न्यूज लॉन्ड्री के नाम से। तो किस तरह से वो भाषा को कैसे देखते हैं, और भाषा पे जितना बेहतर तरीके से न्यूज लॉन्ड्री ने काम किया है बहुत सारे शब्दों को लेकर, जिस तरह से वो बार बार उनको तोड़ मरोड़ करके या बार बार बोल करके उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियां निकाल करके जिस तरह के वीडियोज उन्होंने क्रिएट किए हैं, और खबरों को जिस तरह से क्रिटिसिज्म उसका करते हुए पाठकों को उसकी एक हकीकत दिखाई है, तो उसका एक स्वरूप मैं चाहूंगा कि अतुल चौरसिया जी अब आपके सामने रखें, और काफी वो और अच्छे तरीके से आपको जो इसका दूसरा पक्ष है वो बताएं। थैंक यू। ये विषय जो है ये मेरे लिए जर्नलिज्म के नज़रिए से भी और राइटिंग के नज़रिए से भी, लैंग्वेज ऑफ जर्नलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें थोड़ा सा मैं शायद मेरा जवाब लंबा सा हो। पहले हम इसको जर्नलिज्म की जो लैंग्वेज है, पत्रकारिता की जो भाषा है, इसको 2-3 ब्रैकेट्स में अलग अलग पड़ाव में अगर बांट कर देखें तो एक मोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि लैंग्वेज कैसे बदली है। जैसे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक काफ़ी हद तक जो जर्नलिज्म था उसकी भाषा बहुत मिशन वाली पत्रकारिता थी, मिशन वाली लैंग्वेज थी, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा सरोकार था और वो था नेशनलिज्म का। एक विदेशी ताकत को बाहर करने के बाद पैदा हुआ जो एक कॉन्फिडेंस था, वो भाषा पे पत्रकारिता के हावी थी। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण पड़ाव है जो भारत की जर्नलिज्म है उसकी लैंग्वेज में, वो मुझे लगता है कि इमरजेंसी को मानना चाहिए। इमरजेंसी ने जिस तरह से पत्रकारिता के साथ डील किया, ट्रीट किया, जिस तरह का व्यवहार रहा, जिस तरह के रिश्ते बने, उसने पत्रकारिता को बहुत अलग एक भाषा दी। वो कन्फ्रंटेशन की भाषा थी, उसमें पेशेवराना रवैया आया। वो जर्नलिज्म के उन बेसिक उसूलों की तरफ ज्यादा मुड़ गई जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल नजरिए से देख सकते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजें हैं, जिसमें अधिकारों की बात है। तो ये चीज कमोबेश मैं मुझे लगता है 90 तक इसमें काफी हिस्सा रहा, और वो चीजें वैल्यू के तौर पर अभी भी हैं, बहुत जगह मौजूद हैं। 90-92 के बाद इसमें एक तीसरा जो मेजर पड़ाव मुझे लगता है, जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया का, जब मार्केट ओपन हुआ, उसके साथ मीडिया का कमर्शलाइजेशन बहुत बढ़ा, उसकी डिपेंडेंसी जो हुई वो बहुत बढ़ी। तो वहां से भाषा का एक तीसरा पड़ाव जो चेंज होना शुरू हुआ, उसने अपने को बदलना शुरू किया। वो बहुत प्रो मार्केट वाली जो लैंग्वेज थी उस तरफ बढ़ी है। तो ये एक 3 मोटे मोटे हिस्से हैं जो कि मुझे लगता है कि होने चाहिए। अब मैं जो बात करूंगा वो हिंदी के लिहाज से ज्यादा, क्योंकि बाकी अंग्रेजी राज और नरेश बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ने कैसे अपने को इवॉल्व किया है। हिंदी के नजरिए से मैं देखूं तो हिंदी भाषा की जो पत्रकारिता थी उसमें मेजर जो बदलाव, मेजर जो नए शब्दों को लाना, नई चीजों को जोड़ने का काम हुआ, उसकी जो पूरी इंडियन हिंदी जर्नलिज्म की वोकेबुलरी को बनाने का काम हुआ। आजादी के बाद से बहुत सारी चीजें थी जो चली आ रही थी, उसमें मेजर काम हुआ। जनसत्ता के आने के बाद प्रभाष जोशी ने उसमें बहुत सारा काम किया, प्रभाष जोशी की टीम। इनफैक्ट वो अकेला वाकया है जब जनसत्ता की लॉन्चिंग से पहले 6 महीने तक केवल इस बात पर बहुत सारे मंथन, बहुत सारी बैठकें, बहुत सारी चीजें हुई कि जनसत्ता की भाषा क्या होगी, किस भाषा में बात होगी, हम लोग कौन से। तो उसमें उनका ये कहना था कि, और प्रभाष जी ने बहुत सारे शब्द दिए उसके बाद, प्रभाष जी की पूरी भाषा कागजकारे में उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो बाद में मेन स्ट्रीम हिंदी जर्नलिज्म की भाषा बन गई। तो भाषा का एक मेजर वहां से इवॉल्व हुआ। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर से हिंदी भाषा पर उस तरह का बड़ा काम किसी ने किया, उतना गंभीर काम हुआ। तो वो कमोबेश अब चलता रहा। अब मैं जो आज की स्थिति है उसके बरक्स, उसके नजरिए से थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। इस समय जो बदलाव हुआ है भाषा में, हमें एक बेसिक 2-3 जो चीजें सिखाई गई थी उसमें ये था कि जो भाषा हमारी होगी वो जोड़ने वाली भाषा होगी, वो बांटने वाली भाषा नहीं होगी, वो नफरत की भाषा नहीं होगी। आज जो भाषा में सबसे बड़ा अंतर है पत्रकारिता की, वो बहुत डिविजिव भाषा है, वो बहुत बांटने वाली भाषा है। उसमें नफरत, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे थे, ये शब्द मुख्य सहारा की पत्रकारिता में शामिल हो गए हैं। ये वही भाषा है जो गिरावट है भाषा की। और पत्रकारिता की भाषा और सोशल, मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊं थोड़ा सा आप लोगों के साथ, माफी के साथ,
कि दिल्ली की सड़कों पे अक्सर रोड रेस की घटना हो जाती है, दो गाड़ियां आपस में टकरा गई और दो लोग आपस में उतरे और वो आपस में लड़ गए। तो एक आपस में इस लड़ाई में जो भाषा इस्तेमाल होती है कि पैंचो ये मैं तेरे तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, ये उसमें से आप पैंचो या और बाली जो गालियां हैं उनको हटा दीजिए। उसके अलावा मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, ये वाली भाषा खासकर टेलीविजन की भाषा हो गई है। ये सोशल मीडिया की भाषा, टेलीविजन की भाषा और बहुत सारे अखबारों की भाषा हो गई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर आया है। इस अंतर को, इस गिरावट को समझने की जरूरत है कि हम इस भाषा को कहाँ तक ले जाएंगे। और साथ में इस डिविसिव जो भाषा, बहुत सिंपल सी जो लाइन थी कि जब दंगा होगा तो हम कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे, हम ये नहीं बताएंगे, आज वो पूरी तरह से खत्म हो गई। वो लाइन एकदम ब्लर हो गई है। किसी को ये कहने में संकोच नहीं होता कि, या लिखने में संकोच नहीं होता कि ये मुसलमानों ने ये किया, मदरसे में ये हुआ, इन्होंने इसको मारा और हिंदुओं के साथ ये हुआ। तो वो जो भाषा है वो इतनी उस पूरे उसमें उस संकट को खत्म करने में उसके ऊपर पानी डालने के बजाय उसमें आग डालने का काम करे। ये बड़ा मेजर बदलाव है इस समय की भाषा को लेकर। ये मोटी मोटा जो दो तीन चीजें थी इसमें अभी तक मैं कहना चाह रहा था। एक और आखिरी में पॉइंट है मेरा, वो ये है कि जो भाषा पत्रकारिता की होनी चाहिए, वो भाषा में दो बेसिक टेनेट्स होते हैं। वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, वो बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे रही नहीं, और वो बहुत कम्युनिकेटिव होनी चाहिए कि आपके साथ संवाद स्थापित करने। इन दो चीजों की कमी हो गई है और भाषा ओपिनियनेटेड हो गई है, ना वो कम्युनिकेटिव है ना उसमें। जैसे कि मैं एक किसी नाम लिए बिना एक उदाहरण दे रहा हूँ और सबने उसको देखा होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता एक चैनल पर बैठे थे और एक एंकरिंग जो मुहतरमा कर रही थी, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता ये कहने के लिए पूरी तरह से इंटाइटल्ड है एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए कि वो भ्रष्ट है। उसी में जिस नेता के लिए के भ्रष्ट होने की बात की जाए, उस पार्टी का भी प्रवक्ता बैठा हुआ है उसी डिबेट में। उसको साइड करके एंकर ने जो स्टैंड लिया कि आप मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं सुनूंगी, ये नहीं चलने दूंगी, ये कहां से आई? ये पत्रकार का इसमें क्या स्टेक है? इस पूरे खेल में उस एंकर का क्या स्टेक है? एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को भ्रष्ट कहे, इसमें क्या बात, इसमें मेरा क्या स्टेक है एज अ पत्रकार? लेकिन ये बदल गया है। पत्रकार उसमें पार्टी की तरह से भूमिका अदा कर रहा है, अपनी भाषा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। ये चीज मुझे लगता है कि बहुत टेलीविजन में ज्यादा इस बात की गिरावट है, प्रिंट में भी इस चीज की समस्या है। इसको बहुत ज्यादा, मतलब ये अलार्मिंग लेवल पर जा चुकी है ये स्थिति। अतुल जी ने भाषा, खासकर जो टीवी की भाषा है, आज के प्रिंट की भाषा है, उस पर काफी अच्छे से चीजें रखी हैं। लेकिन पत्रकारिता के भीतर जो समाचारों के बदलाव का दौर आया और जहां कहा जाने लगा, खुल करके कहा जाने लगा कि पत्रकारिता एक व्यवसाय है, और वो व्यवसाय बहुत बिजनेस की तरफ भी गया, या खुल करके कहा जाने लगा कि ये एक विज्ञापन का व्यवसाय है, और विज्ञापन के इस व्यवसाय में जो स्पेस हमारे पास बचता है, वो स्पेस हम न्यूज को देते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर बात है जो हर जगह कही जाती है जब जब मीडिया के व्यवसायीकरण का सवाल आता है। और व्यवसायीकरण ने पत्रकारिता की भाषा को, चाहे वो टीवी की भाषा हो, चाहे वो प्रिंट की भाषा हो, भले वो यूट्यूब की भाषा हो, क्योंकि यूट्यूब में भी जब तक आप लोगों को अच्छा लगने वाला या बहुत उस तरह का नहीं बोलते हैं जो उनको एक खास तरह का जायका देता है, तो यूट्यूब के चैनल्स भी देखे नहीं जाते हैं। और यूट्यूब के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जब तक आप एक तरफा नहीं चलेंगे, या तो आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे या किसी की तारीफ करेंगे। और अगर आपने दो नेताओं को एक साथ उनकी कमियां और उनकी खूबियां बता दी और एक साथ बताई, तो वो आगे रीट्वीट या आगे जाएगा भी नहीं, शेयर भी नहीं होगा, क्योंकि उसको सामने वाले का भी ख्याल रखना है कि सामने की आलोचना हो रही है कि तारीफ हो रही है। तो वहां आपके, तो ये जो नया फॉर्मेशन आया, ये और ज्यादा खराब हो गया है।
आप जितने भी पॉपुलर से पॉपुलर और जिनको बहुत नायक हम मानते हैं वहां भी आप ये देखेंगे तो ये स्थिति दिखाई देगी। तो इस दौर में जो अंग्रेजी मीडिया की खासकर भाषा है उसको लेकर के मैं हमारे साथ जयराज सिंह हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के राइटर हैं, ब्लॉगर हैं और पॉडकास्ट इनके बहुत करते हैं ये। तो इनका क्या ख्याल है भाषा के बारे में, और खासकर जो अंग्रेजी की भाषा है, हिंदी वाले लोग तो बहुत ज्यादा समझते हैं कि ठीक है ये गद्दार बोल दिया, ये बोला, सब कुछ चल रहा है, पप्पू बोल दिया, तो क्या अंग्रेजी उससे कितनी प्रभावित है और अंग्रेजी का स्तर किस तरह का है और उसको लेकर वो कितना चिंतित या कितने आशान्वित हैं, ये विचार अपने रखें। Thank you. Ji, I think our consumption of news has evolved. Our language has evolved as our consumption of news. And, you know, if I remember while growing up early in the 90s, if we were consuming news through television, it used to be in the living room where, you know, our grandparents were sitting in the same room, our parents were there. And the language spoken through that state, TV was so different, simpler. And then we saw that the TV came into our bedrooms, so the language evolved also. The anchor sitting in was suddenly more spirited. He was talking to you in a different manner. And today, the news has come to our phones, and our phones we consume everywhere, in sitting on the pot, on the road, while traveling, and it's become more direct and coarser. And it what it has created is that it has created a more direct speak to the audience. And the problem and the fallouts of that direct speak is that it doesn't care for the larger amount of people. As long as you are reaching out to your set of people, your kind of people, you are happy that आपके जो 100, 1 मिलियन, जितने भी लाखों जो आपके फॉलोअर्स हैं, अगर आप उनको खुश कर रहे हैं या उनको उनके इमोशंस को फ्लेयर कर रहे हैं, then you don't have to care about journalism. But actually, I mean, this is largely true in broadcast, and now you're seeing in YouTube clips or reels and all that. And as far as English language is concerned, I feel that it's either stayed back in the past. If you look at our newspapers, the reporting that is done is still antiquated in the sense that it is not looking at people, or it stops looking at people and thinking how it can form a deeper connection with people today. Or you're seeing some pockets of journalism more online, which realizes that it can't be doing its journalism the way print does, and it's more direct and it's more opinionated and more blog driven. So we in the writing aspect of journalism, there has been two states. Either it's way back in the past, or it's again trying to form a new language. I think as journalists, it is our responsibility to constantly look at how we can reach out, simplify things, add context to things, rather than just giving hot takes and opinions. That's my point of view. Thanks. अब मैं आपके सामने एक ऐसे राइटर जर्नलिस्ट को सामने ला रहा हूँ जिन्होंने, जो स्क्रॉल के एडिटर हैं, संस्थापक हैं, और बॉम्बे की जिन्होंने जीवनी लिखी है, बायोग्राफी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के बारे में बहुत मशहूर किताब है उनकी, ताजमहल के बारे में उनकी किताब है, और बहुत सारे पहलुओं पे हैं। और आपने रामचंद्र गुहा और दूसरे बड़े जो राइटर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, उनको रेगुलरली पिछले कुछ समय में इंटरव्यूड भी किया है। तो भाषा का जो आज का डिबेट है, उसको किस तरह से वो, खासकर जो वेब जर्नलिज्म है और यूट्यूब का जर्नलिज्म है, प्रिंट का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, उसे किस तरह से देखते हैं? Thank you for having me. Actually, some of what I was thinking about, Atul has already said. I think when I became a journalist in the late 80s, we were heir to the tradition of sort of independence era journalism, which had purpose. But also many editors of that time in Hindi and in English were great literary figures. And so it wasn't just what you said, it was how you said it
that really made a difference. And I think this really came to fruition during the emergency, where suddenly the press felt unshackled. You had the growth of magazines, which allowed you to try out various different forms. And in English journalism, especially, it had coincided with the new journalism movement in the US, where all sorts of writers, Tom Wolfe, Truman Capote, many of them were thinking of using journalism. They were trying to invent a form they called the non-fiction novel, that truth, reality could be represented in a form that was as gripping, as interesting as a story. And so that was really reflected in Indian journalism. And by the time I rolled up in the late 80s, everybody in the Times of India newsroom in Bombay either wanted to be a poet or had some manuscript tucked into their back pockets. Most of them terrible, but everybody had literary aspirations and a social conscience. And I think that really began to change, as you pointed out, with liberalization, where suddenly the newspaper managements were very interested in advertisers more than the people, their news audiences. Famously, Samir Jain at the Times of India said he was in the business of selling ads, and the news was the stuff between the ads. He was in the business of selling eyeballs. And I think that was the real change. To begin with, we were willing to tone down what we said in order not to offend an advertiser. And from there, then it was a short leap not to offending anybody who was seen as powerful. But we also changed the context and the conceptual nature of what we were doing. Suddenly, we weren't talking to audiences, we were talking to consumers. We were not producing journalism, we were producing content. And as with the rise of web technology, this content was sort of like not even a building block. It was something you stirred out into various different pots. This content could go on into a video. This content could go into a story. This content could go into a reel. And we lost the specificity of what we were doing. But every medium has its own language, its own linguistic structure. And we are losing audiences because we are not respecting the linguistic structures of what we're doing. That the visual medium has one structure, and we should tell our stories in a form that best suits that. I think we've now reached the point where language has been denuded of meaning in this Orwellian way. We don't have floods anymore. We have flood-like situations. We don't have stampedes. We have stampede-like situations, as if there's a difference. The word jihad is astonishing. We had love jihad, land jihad, flood jihad, fertilizer jihad. Now in a pocket of Delhi, there's evidently a jeans jihad being fought. And as we don't think about what our words mean, we debase ourselves, but we debase our audiences. We think of them as consumers. And in this age of clickbait, until we recover our self-respect, I don't think we can expect audiences to respect us. फर्नांडिस साहब ने काफ़ी उद्वेलित करने वाली बातें आपको बताई हैं। मुझे जिस तरह के जिहाद की वो चर्चा कर रहे थे, और पिछले दिनों मैंने देखा कि व्हाट्सएप आ रहे हैं लगातार कि इन शब्दों का तो आप इस्तेमाल करेंगे लेकिन इन शब्दों का नहीं करेंगे। और जब वो सूची आ रही थी तो क्योंकि आदमी को पता नहीं होता कि मैं किसको क्या भेज रहा हूँ, वो ये सोचता भी नहीं है, भेजता रहता है। फिर उसके तत्काल बाद में एक व्हाट्सएप उनका आया जो बहुत हिंदी प्रेमी थे, तो वो शब्द था कातिल शब्द को लेकर के, कि जब आप घर में जाओ पत्नी को बोलो कि तुम आज बड़ी कातिल लग रही हो तो क्या प्रतिक्रिया है, और जब
उसके लिए आप हिंदी का शब्द इस्तेमाल करेंगे तो जूते पड़ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मैंने उनको पलट के कहा कि अभी तो आपने भेजा था ये, तो इसको सारा निरस्त क्यों कर दिया आपने, बोलिए आप ये। तो भाषा की जो स्थिति है वो आज ही नहीं, अभी बहुत खराब शब्द हैं वो अच्छे के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, और जो खराब शब्द, जो अच्छे शब्द थे उनको खराब किया गया। ऐसा इतिहास में भी होता आया है। उसका एक छोटा सा उदाहरण करके मैं आगे बात को बढ़ाता हूं कि जैसे रावण के 10 सिर, तो रावण के कोई 10 सिर नहीं थे। रावण को संस्कृत में 10 कंठ कहा गया था, क्योंकि 4 वेद और 6 शास्त्र याद थे। लेकिन जो रावण को जब शत्रु के रूप में प्रयुक्त किया गया, तो रावण को 10 कंठ की जगह 10 आनन कर दिया गया, 10 सिर बना दिए गए। तो जो उसकी खूबी थी उसको खामियों में बदल दिया गया। इसी तरह के महाभारत में भी उदाहरण है, इसी तरह के उदाहरण उपनिषद काल में है, इसी तरह के उदाहरण मुगल काल में मिलेंगे, मौर्य काल में मिलेंगे। भाषा हमेशा इसी तरह से रही है। जैसे आप अगर मनुस्मृति खोलेंगे तो उसमें आपको बलात्कारी के लिए साहस शब्द मिलेगा, लेकिन आज वो पॉजिटिव सेंस में है। तो हमेशा से भाषा के साथ जो सत्ता के लोग रहे हैं, या जो सत्ता सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं, अर्थ सत्ता है, व्यवसाय की सत्ता है, जातियों की सत्ता रही है, तो वो सारे बदलाव जो हैं, अब तो जो डिबेट आगे बढ़ रही है उसमें मैं सुमित अवस्थी जी से फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि वे अब क्या सोचते हैं, ये आखिरी दौर है और इसमें अपनी बात कहें। मुझे नरेश जी की बात सुन के और अतुल की बात सुन के अब कुछ घटनाएं याद आ गई, जो मैं अलग अलग फोरम पे जाते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, हम लोगों का काम ही लोगों से मिलना है। तो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी एक बार, किसी कॉलेज में उसकी दीवार पर लिखी हुई थी, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म स्कूल था, मैं याद तब से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। उत्तर प्रदेश का कहीं का कॉलेज था, आई थिंक कानपुर में या बनारस की बात है। वो बड़ी अच्छी लाइन थी, तो मैं यहाँ उसको उसी को कोट कर रहा हूँ। मेरी लाइन नहीं है ये, पर मैं इसको आप सबकी इजाजत से पढ़ना चाह रहा हूँ। और बहुत सिंपल सी बात है, और जो बात नरेश जी बोले थे उस कहानी को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग भाव सर वही है, साहित्य के बगैर पत्रकारिता निहत्ते भले ही ना हुई हो, पर अकेली हो गई। हम लोग लिटरेचर को मिस कर रहे हैं, और ये इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अब हमारे बीच में कोई माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, कोई गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं है, कोई गे नहीं बचा है, कोई सुरेंद्र प्रताप सिंह नहीं बचा है। मैं प्रभाष जी का नाम लिया, प्रभाष जी ने पहली बार अतुल ने जब जिक्र किया तो मुझे, हमारे शहर से आते हैं, इंदौर से आते थे, तो मैं उन्होंने इंदौरी हिंदी को देश की भाषा के तौर पे स्थापित करने में बहुत बड़ा काम किया। अपन तो जारी हैं, अपन तो ऐसे ही कहेंगे, अपन तो केच लेते हैं, वैसे ही बात करते थे जो इंदौर की भाषा है। तो मैं कह रहा हूं कि भाषा के तौर पर जो काम होना चाहिए था भाषा को समृद्ध करने को लेकर, वो पत्रकारों के भरोसे नहीं हो सकता है। ये कड़वी सच्चाई है। और आज के इस दौर में जब हम पाठक को कंज्यूमर मानते हैं, जब हम व्यूअर को कंज्यूमर मानते हैं कि ये सेगमेंट में इस वर्ग के लिए बना रहा हूं क्योंकि हमको वो विज्ञापन मिल जाएगा, या फला चीज का इवेंट आ रहा है तो एक शो उस पर बना देते हैं, शायद हमको वहां से स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। जब तक हम कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म करेंगे, जब तक हम रेवेन्यू सेंट्रिक जर्नलिज्म करेंगे कि हमको, उसके बाद हम ये उम्मीद करें कि हम भाषा को समृद्ध कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। भाषा को समृद्ध करने के लिए आपको राहुल द्रविड़ बनना पड़ेगा। अगर क्रिकेट को खेलना है तो तीनों फॉर्मेट में आने के लिए आपके पास राहुल द्रविड़ भी है, आपके पास ऋषभ पंत भी, आपके पास हार्दिक पांड्या भी है। चॉइस आपकी, आपको किस फॉर्मेट में कैसे आपको खेलना है। पर जब तक आप राहुल द्रविड़ नहीं बनेंगे, जब तक आप सचिन तेंदुलकर नहीं बनेंगे, तब तक आप तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पाएंगे। तो तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए, आपके बेसिक मजबूत होने चाहिए, तभी आप T20 पे भी डबल सेंचुरी मार सकते हैं, और सचिन ने वो करके दिखाया है। अब मैं अतुल जी से आग्रह करूंगा कि वे बात को और इस बहस को किस तरह से देखते हैं। क्या भाषा वास्तव में कोई पत्रकार नहीं दे सकता, या पत्रकारिता नहीं दे सकती, या भाषा और पत्रकारिता का संबंध, ये रिश्ता जो है कैसा है, कहां तक ले जाता है? इस बात से मेरी थोड़ी सी सहमति भी है, थोड़ी सी असहमति भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि पत्रकार साहित्यकार नहीं होता, तो उससे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो साहित्यकार। बात ये है कि जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वो भाषा
जो आखिर में मैंने पिछली बार लाइन कही थी कि वो कितनी कम्युनिकेटिव और कितनी उसमें इंफॉर्मेटिव है, सूचना कहाँ है उसमें, और संवाद कितना कर रही है वो, बजाय इसके कि जिंगोइज्म कर रही है, वो एक उन्माद फैला रही है। तो एक वो है हिंदी भाषा के पत्रकारिता में जो एक प्रॉब्लम की एक स्थिति बनती है, वो मैं उसको इस लिहाज से भी देखता हूँ कि आपका जो कंटेंट पूल है वो कहाँ से आ रहा है। अब आप देखिए, एक प्रभास जी का जिक्र आया बीच में कि उनकी वजह से एक मालवा वाली जो रीजन की और जो मध्य भारत वाली हिंदी थी वो आई, लेकिन आज की तारीख में एक बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा जो एक बहुत लिमिटेड इलाके से आ रहा है। मैं फिर हिंदी के लिए बात कर रहा हूँ, ये वो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से आ रहा है, बिहार के कुछ इलाकों से आ रहा है, एक लिमिटेड इलाके से आ रहा है। तो इसलिए उस भाषा में आप डाइवर्सिटी नहीं देख पा रहे, ना आती है, डाइवर्सिटी का बहुत अभाव है, उसमें रस नहीं है, उसमें एक एक किस्म का मोनोटोनी है, एक रास्ता है। इसलिए है क्योंकि वो सारा टैलेंट पूल एक जगह से आ रहा है। उसमें आप देखिए कि बम्बईया हिंदी है, पूरी तरह से हिंदी जर्नलिज्म में मिसिंग पाएंगे आप। दक्कनी हिंदी है जो हैदराबाद के इलाके वाली, वो मेन स्ट्रीम हिंदी जर्नलिज्म में आप मिसिंग पाएंगे। आप राजस्थान, हिमाचल और बहुत सारे जो हिंदी भाषी स्टेट है, इनकी भी जो बहुत सारे भाषा के लैंग्वेज के नुआंसेस हैं, शब्द हैं, उसको मिसिंग पाएंगे क्योंकि टैलेंट पूल बहुत लिमिटेड हो गया है। ये एक बड़ी समस्या के तौर पर और जो दिखती है। लेकिन फिर ये मैं वही आखिरी में बात कहूंगा कि हिंदी की दूसरी ये है कि हिंदी की भाषा में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पैट्रियार्की और मिसोजिनी। वो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको एक बहुत रीसेंट घटनाक्रम से समझिए, वो हमेशा घूम फिर के कहीं ना कहीं वो पैट्रियार्की में चली जाएगी। आप जो राधिका यादव का अभी एक नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर का जो की मौत का मसला आया, अब ये बहुत सीधा सीधा सा मसला था कि पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, और ये चाहे जिस भी उसमें पैट्रियार्की ही काम कर रही थी, सोशल वो, कि एक बेटी परिवार की पहचान नहीं बन सकती, या उसके किसी काम काज से दिक्कत हो रही है, लोग टॉन्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस बाप का ईगो कहें कुछ भी कहें इतना कमजोर, इतना फ्रेजाइल था कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी लोगों के कहने पर। अब यहां पर आप मीडिया की जब कवरेज देखेंगे तो उसमें ये चीज बड़ी संख्या में दिखी। लोग क्या खोज रहे हैं कि उसका क्या कोई मुस्लिम बॉयफ्रेंड था, उसका क्या कोई और कनेक्शन था, क्या वो मुस्लिमों के साथ रील बना रही थी इस वजह से जरूरी था, या कितनी छूट आप अपनी लड़की को दे सकते हैं वो ठीक है, कितने। तो ये जो चीजें खोजनी, मतलब सीधे सपाट चीजों में, यहां पर हिंदी भाषा में बड़ी दिक्कत है कि वो हमेशा जो मर्दवाद है ना, उसमें उसको चाहे अनचाहे अनजाने तरीके से उसमें चली जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि इसका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। तो अब तक हमारे सामने जो डिबेट में बात आई कि साहित्य और पत्रकारिता का रिश्ता, मर्दवाद किस तरह से, पुरुषवाद कैसे, पैट्रियार्की कैसे भाषा को प्रभावित करती है, पत्रकारिता को कैसे प्रभावित करती है, और जो जेंडर बाइसेस हैं वो किस तरह से न्यूज़ को प्रभावित करते हैं। तो इन सवालों को लेकर के मैं जयराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ खुलासा करेंगे अंग्रेजी की दृष्टि से, अंग्रेजी पत्रकारिता में भाषा की स्थिति क्या है। Language, I mean, what worries me actually is when I talk to people and I ask them where they consume news today. When people say we don't trust the news or we don't read the news, it is a sign of despair because and there have been a lot spoken about this idea that we are in this post-truth world, and where you know, people are saying we are so cynical that we don't trust anything. And is माहौल में जब when you don't trust anything, when you don't trust news, when you don't trust facts, then you can believe anything and anybody, or you start this disintegration you see mostly with people playing with the language of news, being distorted by people who anybody who has a camera, they come in front of it and speak to you in the language of news and infiltrate your thoughts
with ideas of your, जैसे आपके base ideas, you know, of creating hate, of talking about issues that concern you but distort the reality for you. I, um, I fear that what we need to do is go back to the basics in right now, because we are also we are seeing AI come into news, and specifically the written word. And what AI does is that it gives you a lot of words for very less meaning. And you will now have increasingly more and more information coming your way with less and less meaning in front of you. And we need to be more vigilant as readers, consumers of news, and see and go back to our trusted sources rather than just believing everything and anything that comes your way. Because that's where the language will be truly tested of journalism. तो बहस बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसको हमें एक टाइम फ्रेम में कंक्लूड भी करना है। और कंज्यूमरिज्म ने भाषा को कैसे प्रभावित किया है, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी किस तरह से चल रही है। लेकिन सच बात देखें तो ये जो एरा है इसे पोस्ट ट्रुथ एरा कहा जाता है। और इस पोस्ट ट्रुथ एरा में पोजीशन ये है कि जो फेक न्यूज़ फैला करके सत्ता पे काबिज हुए, उसी प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे पिछले दिनों मीडिया में कहा कि किस तरह से जो मुख्य अखबार छापने लगे तो फेक न्यूज़ जो है वो किस तरह से देश को तिरोहित कर रही है, ये उनके कमेंट्स रहे। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जब कोई आरोप उठाता है, कोई बात करता है, कभी उसे इस्लामिक कहा जाता है, कभी लेफ्टिस्ट कहा जाता है, कभी राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, और कभी उसमें से एक टर्मिनोलॉजी निकलती है इस्लामो लेफ्टिस्ट। तो तरह तरह से चीजें कॉइन की जाती हैं। इसमें मैं चाहूंगा कि इस बहस को पूरा कंक्लूड करते हुए फर्नांडीज साहब अपने विचार व्यक्त करें। So I think speaking the right words requires moral clarity. It's a question of actually physiology. You need a spine in order to be able to speak the words that require to be spoken. It's time for the media to retrieve its spine, but it's also time for audiences to call out the bullshit. For audiences, when they hear what is obviously untruths, what are obviously biases, to turn off the TV, to deprive the people who are speaking this language of their revenue, to stop subscribing to these obviously biased, bigoted journals. And just as we need to stop treating audiences like consumers, but we need to start treating them like sort of sentient, thinking, engaged human beings. It's time for these engaged human beings also to express their opinions strongly in the only language that matters to the people who own the media, which is money. So, I just want to add, Abhi, when Operation Sindoor happened, and there was, your TV channels were saying, there was so much rubbish on TV channels. There was one journalist, Sushant Singh, he had said that this is almost information nihilism. कि आप बिल्कुल, for the sake of information, you're providing any garbage to people. And as Naresh rightly pointed out, we need to call out the bullshit, and we need to stop consuming it, because otherwise we'll only be consumed by bullshit. Great. We have one question from the audience, and that brings the end of this panel. Fantastic work, guys. I really appreciate it. Thank you so much.